So what's up guys, welcome back to another video. This is your host Abhishek and let's start the video. So I know that I was not very consistent lately, and that's because of my health issues, but I'm okay right now. And let's be honest that I was not that very consistent from the beginning, but from now I'll try my very best to be consistent and upload two videos at least every month. So India culture is very influenced by the Western culture, especially shoes. Actually, they have a whole different culture about shoes, sneakers, and a lot of stuff. So the thought process is very different from us. We consider shoes as a different thing. They consider shoes as shoes, and for them, shoes are the most important part of any attire, of their outfit, of any outfit. In fact. So the thought process is very different. वहाँ पे $100 is very common to spend on a particular shoe, per shoe actually. But यहाँ पे वो 7 to 8,000 rupees हो जाएगा, and I hope you will understand that as a student, my pocket won't allow me to spend that much money on a particular shoe. So you have to find that sweet spot for you while buying a sneaker, कि आपको गिल्ट भी ना हो और आपकी पॉकेट पे उतना लोड भी ना पड़े. अच्छा. Now you should have a minimum price baseline for a sneaker, and while you are buying a sneaker, that's 1,500 rupees. I guess. Because why 1,500? I will tell you. Because I've tried so many sneakers and so many shoes under the bracket of 1,000 rupees, like 700, 900, 800. Or I found out that कि किसी भी sneaker जो मैंने purchase किए थे under 1,000 rupees, उसकी जो लास्टिंग लाइफ थी वो 2 से 3 महीने से ज़्यादा थी नहीं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ स्नीकर बट यू डोंट हैव द बजट अबव 1,500 रुपीज़, ट्राई टू पोस्टपोन योर plans of buying sneaker and save your money until you reach the mark of 1,500. Okay. So I've created 3 categories for this video for sneakers that have 3 ranges, or you can say I've created 3 budget ranges, whatever. But before that, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई particular brand का शू नहीं बताने वाला. मतलब मैं कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं बताने वाला किसी शू ब्रांड का, बिकॉज जो शूज़ की कैटेगरी होती है या फिर क्लोथिंग लाइन में या शूज़ लाइन में जो आर्टिकल्स होते हैं, जो शूज़ होते हैं, उनका डिज़ाइन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है. ठीक है. और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको आज लिंक कोई प्रोवाइड कर दूँ और कल को वो अवेलेबल ना हो और आप मेरे को गालियाँ दो. आई डोंट वांट दैट. तो मैं आपको ब्रांड्स, मैं पर्टिकुलरली मेनली मेरा जो मेन फोकस है वो ब्रांड्स ही होगा इस वीडियो में. मैंने ब्रांड्स को कंसीडर करके ही ये बजट रेंज बनाई है. सो आवर फर्स्ट बजट रेंज इज़ 1,500 to 3,000 रुपीज़. और इस रेंज के अंदर पहला ब्रांड ऑप्शन है इज़ Converse. I guess if you are a college student like me, और अगर आप कैजुअल आउटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और आपका बजट
मिड रेंज है, मतलब 1500 से लेकर 3000 रुपीज़, देन आई गेस कॉन्वर्स इज़ द ब्रांड फॉर यू। और इसके तो आई गेस एक ही शू है, एक ही पर्टिकुलर शू है जो कि आई गेस बहुत ज़्यादा क्लासिक है और एवर लास्टिंग है, एवर ग्रीन है, और वो है आई गेस चक 90 या चक 90 हाई आई गेस। Yeah. So our second brand in this range is Puma. Now Puma has a wide variety of shoes. They have sports shoes and sneakers also in this category. अगर आपको स्नीकर देखना है तो एक ही ऑप्शन है अनफॉर्चुनेटली, और वो भी सीजनल सेल पे डिपेंड करता है कि वो इस बजट रेंज के अंदर होगा या नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। बट या फ्यूचर राइडर अगर आप जानते हैं तो इज़ अ स्नीकर इफ़ यू आर हैविंग अ बजट ऑफ लेट्स से 3000 रुपीज़, और आपको वो फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा आई गेस, अगर वो स्टॉक में हुआ तो 3000 के अंदर वो आता है, बट जैसे ही वो आता है वो स्टॉक आउट हो जाता है बिकॉज इट्स सो पॉपुलर and it is I guess a very dope ass sneaker. So moving towards our third brand, and I have clubbed two brands in this option, and that are HRX and Roadster. ये जो दो ब्रांड है ना, ये मेनली आपको मिंत्रा पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं मिलेंगे, बट ऑथेंटिसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है मेरे लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए। और आई गेस मिंत्रा पे रोडस्टर और HRX बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही ओरिजिनल मिलते हैं, इतना मुझे पता है। तो अगर आपका बजट लेस देन 2000 रुपीज़ है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लेट्स से sneaker or a canvas or a casual shoe, then this will be a great option. So our second category for this video is, or our second range, whatever, is 3000 to 5000. अब यहाँ पे बहुत सारे options खुल जाते हैं आपके लिए, but I am considering a few great options I guess. So yeah, the first brand in this category is Vans. Or Vans, I mean, yeah, if you are having a budget of 35,000 to 35,000, if you are having a budget of 3,500 to 4,500, 5,000 rupees, then Vans will be a great option. इसका तो आजकल मतलब एक बहुत समय से ट्रेंड में आई गेस अभी भी Vans ओल्ड स्कूल और Vans ओल्ड स्कूल हाई, ओके। बट अगर आपको इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू बाय द नॉर्मल Vans, देन वो तो आपको 1500 to 3000 वाली कैटेगरी में भी मिल जाएगा। बट अगर आप पर्टिकुलरली बैंड्स देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारी अच्छी बेलीज मिल जाएंगी इसके अंदर, इस रेंज के अंदर, और आपको बहुत Vans ओल्ड स्कूल मिल जाएगा जो कि बहुत ही एक क्लासिक शू है। अगर आप स्नीकर कलेक्टर हैं, अगर आप स्नीकर हेड हैं, आपके पास Vans होना ही चाहिए ना। एंड नाउ आवर सेकेंड एंड द लास्ट ब्रांड फॉर दिस कैटेगरी इज Zara. नाउ मेरे जैसे बहुत मेरे मित्रगण हैं जो बूट्स के बहुत ही दीवाने हैं और बूट्स उनको बहुत पसंद है, क्योंकि बूट्स अभी एक्चुअली बूट्स आर ऑलवेज इन द ट्रेंड सेक्शन। अगर आप चंकी बूट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, चेल्सी बूट्स लेना चाहते हैं, तो Zara is a brand for you, and Zara has a very wide variety also in boots category, but there are some expensive options also, and the cheaper options also that will be fit in this category. Okay,
So moving forward to our third and the last category for this video is above 5,000. Now why this? Why above 5,000? Because I feel that अगर आप 5,000 के above खर्चा कर रहे हैं, if you are spending above 5,000 on a sneaker, then I guess you are a sneakerhead or a rich or belongs to a rich family. मैंने अपर लिमिट कोई नहीं लगाई है, बट मैं आपको इसके अंदर एक ब्रांड बताऊंगा और एक स्पेशल शू बताऊंगा, ठीक है, जो कि दूसरे ब्रांड का होगा. ओके, सो आई गेस यू हैव गेस्ड इट बाय नाउ. द everyone's favorite brand in sneaker world is Nike. Nike के बारे में मैं क्या बताऊँगा, आपको खुद को ही पता होगा कि कितना फेमस ब्रांड है. अगर आप स्पेंड कर सकते हैं that much money on a particular sneaker, then why not? And I will tell you my top three options under 10,000 from Nike. The first option is our honorable mention in this category is the shoe that has been in the trend since last year, I guess so. Okay, and that is Converse Run Star High. और ये स्नीकर इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि मैं क्या ही बताऊँ. बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद है ये स्नीकर और मैं बहुत दिनों से इस पे आँख लगाए बैठा हूँ, पर मेरे को मिल नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है बाय करने के लिए. और हाँ, अगर आपका बजट 6,000 समथिंग है तो आप जा सकते हैं इसकी तरफ. किकस्क्रू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू बाय स्नीकर्स, और सुपर किक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सुपर किक्स इंडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू बाय स्नीकर्स. सो या, that was it from my side for this video. I hope you liked my effort, and if you do like, then hit that subscribe button down below and do share this video with your friends. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा, नमस्ते और सलाम वालेकुम. अरे बस कर भाई.